نظامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, پوچھ لیں. اور انہوں نے جوائن کیا اور ماشاءاللہ نعتیں سنا رہے ہیں. جناب زبیر بھائی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی. وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ السلام علیکم زبیر بھائی. زبیر بھائی کیسا لگا آج تو ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آج تو آپ نے نا بن بتائے میرے دل کی خواہش پوری کر دی. نظامی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی نعت پڑھی اور اپنا فیصل نقشبندی نے جو نعت پڑھی مجھے بہت مزہ آیا. آپ یقین کریں کویت کے اندر اتنے بہترین نعت خواں ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے جو نعت خواں پاکستان سے آپ سنتے ہیں نا ان سے بہترین آواز ہے ان کی. اور جب میں آپ کو علم ہے تو جب یہ محفلیں ہوتی ہیں تو ان کو سنتے ہیں مزہ آتا ہے. اور میں اصل میں آپ کو اس لیے کہہ رہا تھا مجھے کال پہ لیں کہ نعتوں کا سلسلہ آپ نے جاری کیا ہے نا تو میں قمر نظامی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو معلوم ہے آپ کے علم میں میری پسندیدہ نعت کون سی ہے تو وہ بھی ضرور پڑھیے گا. آپ نے کر کے بھیجی. کیا بات ہے. تیرے نبی میں پڑھا رہوں گا. کیا بات. پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. جی یہ جو نعت ہے نا جناب یہ زبیر شرفی صاحب بڑی محبت کرتے ہیں جی. یہ جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہمیں یہ نعت سنائیں تو پھر ہی محفل کا آغاز ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہر دفعہ مجھ سے سنتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں جتنے مجھے شعر یاد ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. در نبی پر پڑھا رہوں گا پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. زبیر شرفی بھائی آپ کی محبت میں دو شعر یاد تھے اور میں نے آپ کو سنا دی. انشاءاللہ کل آپ سنائیں گے. ماشاءاللہ جی ہمارے اللہ غریق رحمت کرے ذوالفقار حسینی صاحب کو ان کی بڑی بہترین نعت ہے. اور ہم یہاں جب آئے تھے ہم نے اسپیشل سنی تھی ان سے مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہاں کویت تشریف لائے تھے. تو ماشاءاللہ جی یہ نعیم صاحب نے اور ہادی صاحب میں تو پہلے نیچے لکھ چکا ہوں کہ اب ان دنوں میں بہت ثواب اکٹھا کریں گے. انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا جو انہوں نے ہمارے نعت خوانوں کو اتنا اچھا موقع دے رہے ہیں. تو یہ جب جی آج نا پاکستان میں 19ویں شب تھی تو میں نے نعیم بھائی سے ویسے ڈسکس کیا کہ نا آج ہم نا تھوڑا فارمیٹ یہ رکھتے ہیں کہ ہم نا نعت پڑھیں گے. اچھا میں صرف ایک نعت خان سے رابطہ کیا تھا اور وہ سعودی عربیہ سے تھے جنہوں نے شروع میں پڑھا ہے قاسم بھائی. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اچھا وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نعیم بھائی نے نا اتنا انتظام کر دینا ہے کہ میں مطلب میں تو خود سرپرائزڈ ہو گیا ہوں. ہادی صاحب آپ یقین کریں کویت میں اتنے بہترین نعت خواں ہیں. اگر آپ ایک کو سنیں گے نا
تو آپ سوچेंगे यार बहुत मजा आया, जब आप दूसरे को सुनेंगे वो उससे बढ़कर होगा. जुबैर भाई महफिलें कराते रहते हैं और ये अपना ऊपर तो कमर भाई हैं, ये महफिलें कराते हैं, और हमारे एक शहजाद भाई हैं, वो प्रेसिडेंट हैं कीर्तन नाथ के, वो महफिलें बहुत बड़ी बड़ी और बड़े टॉप के पाकिस्तान से नात ख्वान आए हैं, और पाकिस्तान के नात खानों ने हमारे नात खानों के साथ पढ़ा है, और जुबैर भाई इस बात के गवाह हैं कि वो सरप्राइज हो गए. स्पेशली एक बार फैसल भाई पढ़ रहे थे तो यकीन करें कि वो परेशान हो गए कि यार इतनी अच्छी आवाज और इतनी अच्छी उससे ये पढ़ रहे हैं. तो यार ये हमारे लिए, मैं आपको बताया ना, कुवैत अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कम है, 1,20,000 हैं, लेकिन हर फील्ड में कोई फील्ड आप उठा लें, हादी भाई उस पे आप लोग टॉपिक ले लें, मैं आपको पाकिस्तानी ला के दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे कि इतना टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह. आज तो वाकई नईम भाई ने ना मतलब दिल खुश कर दिया, क्या कह सकता बंदा. हादी साहब, नईम साहब सही कह रहे हैं, हमारे पास एक्टरों की कमी थी. एक हमारे पास एक्टर थे फयाज वर्दी साहब, अब माशाल्लाह दो हमारे सामने बैठे हैं, नईम जान और कमर निजामी, ये भी जबरदस्त एक्टर हैं जी टिकटॉक के. दोनों एक्टर बढ़ते जा रहे हैं, एक्टर बढ़ते जा रहे हैं. और ऊपर मलक साहब भी हमारे पास बैठे हुए हैं टिकटॉक. मलक साहब को आपने अभी टिकटॉक पे नहीं देखा? हाँ जी, कमर निजामी के टिकटॉक में देखता हूँ जी. कुवैत से कोई भी हो मैं उसको फीड कर लेता हूँ, तो देखा होगा भी, मेरे थोड़े ज़हन में नहीं आ रहे, जरूर देखा होगा. हाँ. कमर निजामी भाई, नात कब से आपने शुरू की, बचपन से, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, जरा बताइएगा प्लीज. कमर भाई स्टक हो गए लगता है ना जी? मैं सही कह रहा हूं? अपना नहीं, इनका बेटा जो है ना छोटा, जी, वो भी बड़ा, वो मुझे ना एक नात बड़ी जबरदस्त नात पढ़ता है, तो कभी उसको उससे भी नात पढ़वाएं, उसके ये कमर निजामी के बेटे से, अहमद से, बड़ी अच्छी आवाज है उसकी भी. बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना है उनको, मैंने सुना हुआ है. और कमर भाई, आपसे मैं ये सवाल कर रहा था, उस टाइम आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, कि आपने कब से नात शरीफ पढ़ना शुरू की, और ये बताएं कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा बताइए सबको. ये माशाल्लाह मेरे वालिद साहब भी नात खान, मेरे ताया जी, मेरे भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज का शौक दिया. और यहाँ पे कुवैत में जब आए, बेसिकली मैंने कुवैत में महफिलें पढ़नी शुरू की हैं. पाकिस्तान में जब मैं था ना, तो वहाँ पे बस स्टडी और बस अपने काम से बिजी थे कि बस स्टडी कर रहे थे. जैसे स्टडी कंप्लीट हुई है, कुवैत में आए हैं, कुवैत में आके जॉब मिली है, और आपको पता है जॉब के बाद आपको तो पता इल्म है कि यहाँ पे सबके पास बहुत टाइम होता है. तो पाकिस्तान में थोड़ी जरा हलचल ज्यादा रहती है, लोगों के पास काम होता नहीं, लेकिन टाइम भी नहीं होता, काम कम और टाइम भी कम. तो यहाँ पे काम के साथ टाइम भी मिल जाता है. ये लॉजिक की मुझे आज तक समझ नहीं आई कुवैत के लॉजिक की, कि यहाँ हम काम 2-3 कर रहे होते हैं, लेकिन हम कम्युनिटी के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं. पाकिस्तान में आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो आप किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते. ये इस लॉजिक की मुझे आज तक समझ नहीं आई. यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे जब कम्युनिटी में जाने लगा तो एक दो जुलूस में एक दो मैसेज वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया. जी ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है आदि भाई, ये बहुत बड़ी बात है. जी. मैं आदि भाई आपसे कहूंगा कि ये जुबैर भाई, ये मलक साहब, ये कमर साहब, और ये जितनी शख्सियात अभी तक आपकी ब्रॉड के पास आए हैं, ये सब लोग एक एक महफिल में मौजूद होते हैं इकट्ठे. मैं आपको दिखा दूंगा, वो कोई भी महफिल हो, हम सब वहां मौजूद होते हैं. ये नहीं है कि जुबैर भाई ने बुलाया तो मैं नहीं जा रहा, कोई नजरियाती इख्तलाफ है, कमर नहीं जा रहा, कमर आ रहा है, मलक साहब नहीं जा रहे, हम सब लोग जाते हैं वहां पे. ये पूछ लें, और मुलाकात होती है. जी जुबैर भाई. मैं नहीं, आपकी बात को आगे थोड़ा सा करूंगा आदि साहब से. आदि साहब, ये कुवैत कम्युनिटी जितनी हमारी है ना, हमारे जब कोई खुशी गम होता है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं. हर जो भी छोटा मोटा हमारा सियासी इख्तिलाफ, उसको छोड़ के ऐसा लगता है जैसे हम भाइयों की तरह एक दूसरे को मिल रहे हैं. ये एक बहुत बड़ी बात है. तो नहीं, कल मुजाहिद चिश्ती को भी कमर साहब कॉल कीजिएगा, कल मुजाहिद चिश्ती को भी. अच्छा, ये नीचे एक भाई हैं कमेंट कर रहे हैं, उस्मान मुगल साहब. उस्मान मुगल में आप अपने कमेंट के ऊपर या नीचे देखें, हमने अपने पेज की तरफ से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आ जाएं. वो कह रहे हैं मैं नात सुनाना चाहता हूं, तो मोस्ट वेलकम भाई उस्मान भाई, इसी काम के लिए बैठे हैं हम. आप क्लिक करें इस लिंक को. ये मैंने दोबारा लिंक शेयर किया है उस्मान भाई, इस लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम लिखें, अलाउ करें माइक और कैम को, और नीचे ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बन जाएं. ये ओपन है सबके लिए. आए आप नात सुनाएं भाई, हम सबके लिए बैठे हुए हैं. आए आज ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, किसी एडमिन की इजाजत नहीं होती.
कमर भाई आप आए हैं एडमन की कोई इजाजत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉल पे आ गए, आपने देखा हो कोई एडमन शैडमन का चक्कर नहीं डाला। जी जी बिल्कुल। मैं बस वो नाथ खानों से राब्ता किया है। नदीम अकबर आए हैं नीचे भाई, नदीम अकबर साहब आए हैं, नदीम अकबर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम अकबर को नईम साहब ले ना जरा, नदीम अकबर का चेहरा तो दिखाएं। मैंने तो नदीम अकबर साहब को लिंक भी भेजता हूँ, वो पता नहीं क्यों शर्माते हैं, वो कहते हैं जुबैर भाई हो ना, तो वो बड़े हैं, मेरा नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। नहीं नदीम कुवैत के शेर आए हैं, छोटा नहीं भाई कुवैत के शेर आए हैं, ये कहें। नहीं कुवैत का शेर तो ऑलरेडी साथ बैठा हुआ है, कुवैत का शेर तो साथ बैठा हुआ है मेरे। अच्छा नदीम साहब, वो नदीम अकबर भाई है हमारे छोटे, और नहीं भाई शर्फी साहब बब्बर शेर है और वो शेर है। अच्छा नहीं नईम साहब, आप वो नदीम अकबर के यहाँ अब एक हफ्ता पहले बेटा हुआ, उनको मुबारकबाद दे दे ताकि सब सुन ले। दे दिए जी, मुबारकबाद दिया, मैंने उनको कहा पोस्ट बना दो, तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं है कि पोस्ट बना दे। अब आपने ऐलान कर दिया है, अब उन्होंने कोई जुतियां पै गई है तो तुसी जिम्मेदार हो, मैं नहीं, तो नहीं किया है फ्रॉड थे, मैं नहीं किया। नहीं अल्लाह ताला जी, मैंने तो विशेष भेजे थे। अल्लाह ताला जी महमूद भाई आए हैं, वेलकम हो गया। बड़े भाई आ रहे हैं नीचे। हादी भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक चीज आप मिस करें, नीचे जो भाई आए उनका नाम लेके उनको वेलकम कह दिया करें, क्योंकि फिर बाद में वो गिला करते हैं। आपने कल ही देखा, हम एक और जगह बैठे और एक भाई ने कहा कि मैं आया था, आपने मुझे वेलकम नहीं कहा, तो हम एक्चुअली सामने ये हमारी स्क्रीन पे जो है ना, वो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कोई चैट नजर नहीं आ रहा होता। क्यों जी कमर भाई, यहाँ पे स्क्रीन हमारी बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना जी। और मैं साथ में मोबाइल पे नीचे दूसरे मोबाइल पे पेज को देख रहा हूँ, वहां से मैं देख रहा हूँ कि कोई ना जो आ रहा है, तो वो टाइम लग जाता है उन्हें आए हुए, कब के आए हुए हैं। कमर भाई मैं इस टाइम 3 स्क्रीनें यूज कर रहा होता हूँ। मैंने ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मेरे पास एक बड़ी एलसीडी है, उसके अलावा मेरे पास एक और एलसीडी है, तो मुझे भी ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ना 3 एलसीडीज मैनेज करना पड़ती है। एक मेरा मोबाइल यूज हो रहा होता है। जुबैर भाई आपको ये काविश अच्छी लगी है? जुबैर भाई यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो हाजी साहब से कहा है कि ये रमजान के महीने के जो अयाम जा रहे हैं और जो काम आपने शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे ज्यादा स्वाब जो है ना वो इकट्ठा कर लेंगे, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात, हाशिम खान भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू वेरी मच, और जट भाई थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है हमारे मेहमान जुबैर शर्फी भाई, समाजी शख्सियत है, सियासी और समाजी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ऊपर मलक साहब है, मलक आवान ग्रुप जो है उसके माशाल्लाह करता धरता है, जो पूरी दुनिया में एक आवान ग्रुप है। मुझे पता चल गया वन ग्रुप, वो मैंने अभी टिकटॉक में याद आ गया, मैं कम देखता हूँ ना, याद आ गया। ठीक है, वो याद ही रहना है, आज तुसी देखो। और हमारे साथ है कमर निजामी, बहुत मशहूर नाखान, कुवैत के, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। और हादी साहब पाकिस्तान से कुवैत पाकिस्तान यूथ सोसाइटी का ये पेज जो है मेन एज अ होस्ट वो ऑपरेट कर रहे हैं, और हम सब उनके साथ बैठे हुए हैं। और मुझे चीज को तो मेरे ख्याल में हाँ जी, उस्मान भाई आए माशाल्लाह। उस्मान भाई से पहले उनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। उस्मान भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वेलकम जी, अल्लाह पाक का एहसान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई पूरे पैनल की तरफ से आपको वेलकम, और प्लीज अता हो, हम बैठे उस्मान साहब बिना जी बिना वक्त जाया कीजिए, अता करें जी। सुभान अल्लाह। हाँ जी उस्मान साहब, थोड़ा सा अपना कैमरा सेट कर लें प्लीज। ठीक है जी, कैमरा रोक लें, बैठ जाएं। जी सही है, बिल्कुल रिलैक्स हो, आराम से पढ़ें आप। मुजाहिद चिश्ती साहब आना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं लग रही, तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे।
हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे, वाह जी, खुदा का आमीन। जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। माशाल्लाह दरे रसूल पे ऐसा कभी देखा ही नहीं, दरे रसूल पे ऐसा कभी देखा ही नहीं, कोई सवाल करे और वो अता न करे, वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाल्लाह जिक्र करे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जिक्र मुस्तफा न करे। शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ उस्मान भाई बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हम क्या, हमारी हैसियत क्या, जिनका जिक्र किया अल्लाह ताला आपको बाग बाग करे, उनके पैरे मुबारक के सदके, उनकी मिट्टी के सदके आपको, आपकी आल को अल्लाह खुश रखे। और जनाब चिश्ती साहब को मैंने बड़ी कोशिश, हाँ जी, बड़ी कोशिश से मुजाहिद चिश्ती साहब को मैंने बताया है मैसेज कर करके, तो अभी वो माशाल्लाह चिश्ती साहब को जरूर लीजिएगा, बड़ी खूबसूरत आवाज है उनकी और बड़ा मजा आएगा। उस्मान भाई कहाँ से हैं आप? उस्मान भाई से जरा पूछ लेते हैं, उस्मान भाई कहाँ से? उस्मान भाई आवाज आ रही है सर? कहाँ से हैं आप? माशाल्लाह बताएं, अपना तारुफ कराएं। बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तान में कहाँ है? जी मैं तो असावी में रहता हूँ जी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा उस्मान भाई आपसे सवाल है एक, महफिलों में जाके नात पढ़ते हैं आप? नहीं जी, महफिलों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे आप नजर नहीं आए कभी किसी महफिल पे, तो माशाल्लाह आवाज आपकी नहीं, ये माशाल्लाह सर महफिलों में मैं नहीं। और सोहेल अंजम भट्ट भाई आए हैं, और इससे पहले मैं पश्तो में जवाब दूं, बिल्कुल ठीक ठाक है। मत जनान अफरीदी तो सिंह खैरियत से ओसू पुख्ताने चिगोरे लगे तासु डेरा मेहरबानी तासु दिल तराल है। चलो महफिल में नजर नहीं आया तो आज जो महफिल हो रही है इसमें तो नजर आ रहे नहीं। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, देख ले कमर भाई क्या बात है, मेहरबानी उस्मान भाई, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर उस्मान भाई कुछ और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप अपना नंबर वगैरह कोई सेंड कर दें आपको। ठीक है, वो नंबर में कभी सेंड देना ताकि आपको महफिल में। हाँ जी सोहेल अंजुम भट्ट भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोहेल अंजुम भट्ट? हमारा बड़ा प्यारा भाई आया है, अल्लाह उसको सलामत रखे। वेलकम सोहेल। माशाल्लाह जी वेलकम। ये सोहेल भट्ट हमारे डिप्टी हैं जी, माशाल्लाह जबरदस्त वर्कर हैं जी। शेर है आपके, शेर है बब्बर शेर हैं जी। मैं आपको क्या बब्बर शेर है जैसे आप हमारा मुस्तकबिल है, इस तरह सोहेल भट्ट भी हमारा मुस्तकबिल है जी। माशाल्लाह नौजवान जितने भी निजामी ध्यान रखी। नहीं गैर सियासी गुफ्तगू है आप बेफिक्र। मैं भी गैर सियासी किया, ये हमारे शेर हैं, ठीक है ना, और हम टाइगर हैं, टाइगर। अच्छी बात है ना। देखिए मेरी बात, शेर और टाइगर होंगे तो दुश्मनों को खौफजदा करेंगे ना हम। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, नहीं समझ गया आपने? बिल्कुल समझ गया। जुबैर भाई थोड़ा अपना तारुफ कराएं, आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसे कुवैत आए, थोड़ा तारुफ तो कराएं, जो लोगों को नहीं पता आज बताएं यार, थोड़ा सा बताएं। यार मेरा वो अब्दुल्ला बासी ने रेडियो पे सब चला दिया था, उसने इंटरव्यू बड़ा लंबा किया था मेरा। ओ भाई मेरी बात सुने, अब्दुल्ला बासी साहब भी आ जाएंगे 2 दिन तक, उन्होंने मुझसे वादा किया, जो रेडियो पे चल रहा है वो किसी ने सुना नहीं सुना,
हमने नहीं सुना, आप हमें सुनाए यहाँ पे। क्यों जी हादी साहब? भाई जो रेडियो पे चल गया ना वो चल गया, यहाँ जो आप बताएंगे ये आपके बच्चे भी सुनेंगे आके, ये इधर महफूज रहेगा। जब मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं लाहौर मजांग में पैदा हुआ और गवर्नमेंट समनाबाद गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल समनाबाद में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मैं माशाल्लाह फिर उसके बाद मैं ना, हमारी कुछ जमीन है शक्करगढ़ और दारवाड़ के दरमियान एक गांव है वहां पे, तो यहाँ के माहौल उस वक्त माहौल जो है ना, कॉलेज में गया ना, तो कॉलेज दौर में लाहौर के उस वक्त माहौल बहुत अच्छे नहीं थे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते थे। तो मेरे वाले साहब सऊदी में होते थे, उन्होंने मुझे मेरे ताया जी के पास भेज दिया। वो ताया जी भी थोड़ी देर पहले गए थे गाँव में। तो फिर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शक्करगढ़ में जेर तालीम रहा। तो फिर उसके बाद लाहौर बुवानपुरा कॉलेज में भी पढ़ा मैं। फिर उसके बाद मैं पॉलीटेक्निकल कॉलेज से मैंने ये डिप्लोमा लिया RAC का, ये एयर कंडीशन का। और फिर उसके बाद लाहौर टेक्निकल कॉलेज में मैं 2 साल पढ़ता रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया भी है टेक्निकल। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद भाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सॉरी आपकी आवाज काट रहा हूं, लाहौर में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है गुलबर्ग वाला, वहां से पढ़ाया आपने? ये अबू अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं, कमर भाई आपका क्या हाल है, जरा उनको बता दें, क्योंकि कमर भाई को स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अबू अब्दुल्ला भाई हैं, वो आपका हाल चाल पूछ रहे हैं। कमर भाई जवाब दे दें। जी जी, स्क्रीन पे भी आ गया जी। अबू अब्दुल्ला भाई बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस इसी तरह दुआ करें, अल्लाह ताला सब खैर रखे हर तरफ। अच्छा, ये मैं माफी चाहूंगा मेहमानों से, ये ब्रॉडकास्ट है ना, बीच में इस तरह किसी का मैसेज आए तो हमें जवाब देना होगा, क्योंकि वही हमें सुनते हैं। मैं इसलिए जी जुबैर भाई, आप जवाब दे रहे थे कमर साहब को टेक्निकल कॉलेज के मुतालिक। लाहौर में पॉलीटेक्निक कॉलेज है अपना स्टेशन के करीब, गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहां मैं पढ़ा। और उसके बाद लाहौर टेक्निकल कॉलेज है बोड़ो वाले चौक, वहां मैंने पढ़ाया तकरीबन 1-1.5 साल। मेरा क्यों आपको मालूम, मेरा तलक माशाल्लाह वाह। तो उसके बाद मैं सऊदीया चला गया। सऊदीया एक कंपनी में रहा, वहाँ एक शिरका हनाकी है, वहां पे मैंने काम किया स्पेशल उनके पास। और उसके बाद फिर वहाँ जब ये कुवैत और इराक की जंग हुई ना, तो वहाँ यहाँ अबू अहमद होते थे यरमूक में, वो मेरी दुकान के सामने उनका घर था। तो वो उन्होंने कहा जी आप कुवैत चलें, तो उन्होंने मुझे यहाँ से वीजा भेजा, तो मैं फ्री में यहाँ कुवैत आ गया। क्या बात है। तो और यही क्यों हो गए हैं, यही क्यों हो गए आपके साथ। वाह वाह। नहीं, मैं ठीक हूँ शाहिद महमूद भाई, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे शाहिद महमूद भाई। और आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और यकीन करें, मैं मतलब हादी भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे तमाम भाइयों के साथ मेरे ताल्लुकात, मेरी मोहब्बत इसी तरह बनी रहे। मैं सबका एहतराम करता हूँ। ये जुबैर भाई से आप पूछ लें, बाकायदा ये चीज नहीं है, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने एहतराम का दामन नहीं छोड़ा कभी। देखें आप दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, तो आप देखें आपके पास लोग फौरन आ जाते हैं। और आप, ये सही बात है कि आप जब भी आपसे मुलाकात होती है तो मजा आता है, इस वजह से कि हमने हमेशा पॉजिटिव बात करनी होती है, जो नेगेटिव है उसको सही करने की कोशिश की जाती है। तो ये अच्छी बात है ना, अगर हम अपनी सलाह करें, कि हम अपनी सलाह कर रहे होते हैं किसी से, तो अगर हम अपनी सलाह कर सकते हैं माशाल्लाह। ये जी मुझे अपना मोहम्मद मुजाहिद चिश्ती भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? आवाज आ रही है आपको? असल में नेटवर्क का बड़ा इशू है आजकल, बड़े आपने पूछा था पाकिस्तान कमर साहब, उनसे कहें नीचे से माइक खोलें। जाहिद भाई मैं पाकिस्तान से लाहौर से ही हूँ। हाँ जाहिद भाई, मैं पाकिस्तान, अभी एक मैसेज मैंने देखा था यहाँ पे, वो पूछ रहे थे भाई आप पाकिस्तान से हैं? जी डेफिनेटली, जितने भी यहाँ पे सब वालेकुम अस्सलाम नफ्सी भाई, आपका से आया ही हूँ मैं मुजाहिद चिश्ती से। आप कहें कि वो नीचे से माइक खोलें, शायद उनको पता नहीं चल रहा, शायद नहीं माइक नहीं, नेट का मसला है, नेट का मसला है जुबैर भाई, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ। तमाम भाइयों को बहुत बहुत वेलकम और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कल भी दोबारा इंशाल्लाह ताला यहाँ पे नात शरीफ और कुवैत के बेहतरीन नात ख्वान और जुबैर भाई भी यहाँ पे हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। और जनाब कमर निजामी साहब इंशाल्लाह उस नातिया इवेंट को होस्ट करेंगे बाकायदा, और यहाँ पर नातें होंगी इंशाल्लाह, सरकार का नाम होगा और इंशाल्लाह बड़ी महफिल कल भी जमेगी। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में टाइम 10 बजे, पाकिस्तान टाइम 12 बजे।
जी 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 जरूर आएंगे जी, इसलिए कि आपने इतनी अच्छी वाज़ें लेके आ रहे हैं, बुलबुलें जो कुवैत की हैं, जो मिद्दत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हैं, जी जी क्यों नहीं सुनेंगे जी? ये तो जरूर सुनेंगे। जरूर जरूर इंशाल्लाह। ये मैं आपको बताऊं, ये बात खुल के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुबैर भाई इस बात को सेकंड करेंगे कि जितने बंदे नात पढ़ते हैं बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जनाब अली उसके पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये मैं आपको बताता चलूं, बगैर किसी उसके, जुबैर भाई आप बता सकते हैं, ठीक है ना, जी जी कि ये लोग जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तरफ से भी कोई प्यार मोहब्बत का इजहार करना चाहें, ये इनकार कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं क्लियरली ये बता दूं सबको। जी जी हादी साहब, ये नईम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यहाँ महफिलें होती है ना, अक्सर महफिलें रात 12 बजे के बाद तक जारी रहती हैं, और जब रात 12 बजे के बाद जारी रहती हैं तो जितने नौत ख्वाह में ज़ाहिर है सुबह मुलाजिम होते हैं, उन्होंने काम पर जाना होता है, चाहे जुम्मा हो या जुमेरात हो या हफ्ता हो, तो ये प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट काम होते हैं, उन्होंने काम पे जाना ही होता है। तो माशाल्लाह ये 12 बजे के बाद भी रहते हैं और कोई किसी किस्म का कोई हदिया भी कबूल नहीं करते, और दूसरे में बड़ी मोहब्बत से और कोशिश करते हैं कि हम अच्छी नात पढ़ सकें, और उस पर वो टाइम भी देते हैं। और आप कल मुजाहिद चिश्ती को सुनेंगे, आपको और ज्यादा मजा आएगा। अभी पिछले 2-3 दिन पहले लेबर हाउस में आए हुए थे, उन्होंने 2-3 नातें सुनाई मुझे, नई उन्होंने सुनाई, बहुत मजा आया। आप आदि भाई एक माशाल्लाह एक से बढ़कर एक अच्छा जी, उस्मान भाई आए हैं दोबारा। उस्मान भाई कुछ ये जो माइक है ना, ये थोड़ा दूर रखना पड़ता है, ये हेडफोन थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुना दें, कोई मसला नहीं, सुना दें जनाब, कोई मसला नहीं, मुझे नीचे कर दें। बाद में आखिरी 2 शेर कमर साहब आपने भी सुनाने हैं, ठीक है? अभी जी जी बिल्कुल होने वाला है। हाँ जी, टाइम भी आपका 12 बजने वाले हैं ना इधर, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलो आखिरी शेर 2 सुनाएंगे इनसे। या रसूल माशाल्लाह माशाल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े सुनावा, या रसूल अल्लाह। सुनो जे मेरे दुखड़े सुनावा, या रसूल अल्लाह। जे आखो ते मदीने में भी आवा, या रसूल अल्लाह। बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी, किते वेखण तो पहलो मर न जावा, या रसूल अल्लाह। किथे वेखण तो पहलो मर न जावा, या रसूल अल्लाह।
ना घर विच नहीं जी, सॉरी बाबा जी, बिस्मिल्लाह फी मानुल्लाह जी। उस्मान मुगल साहब एक दफा सुन लीजिएगा बात मेरी, एक दफा सुन लीजिएगा बात मेरी। जी आपको जी रोज हम इसी तरह एक लिंक भेज दिया करेंगे, आप रोज आके नात पढ़ लिया करें। रोज इसी ठीक तरह है, का एक लिंक मिलेगा, लेकिन अगले दिन वो नहीं चलेगा, नया लिंक हुआ करेगा रोज का, ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत हाँ, मेहरबानी जी। इधर ही हम कुवैत के टाइम के मुताबिक 10 बजे, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 12 बजे हम आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ठीक मेहरबानी जी। अल्लाह पाक आपको जी। अल्लाह तंदुरुस्ती पाक दे जी, अल्लाह पाक बस अपने दुआ हिफ्ज़ कीजिए। मान में रखे जी। जी जी, दुआ आमीन कीजिएगा। आप आमीन माशाल्लाह बहुत आमीन जबरदस्त कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपका कलाम आमीन कबूल करें जी। आमीन आमीन आमीन, आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। आमीन जी, माशाल्लाह। फी फी आमीन। मानुल्लाह जी, फी मानुल्लाह। ईमान, अल्लाह हाफिज। ये छुपे हुए अल्लाह हैं, ये सामने नहीं आ रहे, मैं हिसाब लगाया ये। माशाल्लाह बहुत आला। आप बताएं कमर भाई, आप खुद बताएं, आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब हम तो अभी मतलब मुजाहिद चिश्ती साहब का कनेक्ट नहीं हुआ। सर 3-4 दफा कॉल जी पे जी आते हैं, लेकिन वो जैसे ही मैं उनकी कॉल अटेंड करता हूँ ना, तो उसके बाद उनका जी जी। नेटवर्क जो है वो जवाब दे जाता है, वो जवाब दे जाता है। हाँ वो मैंने जहाँ बताया ना कि इनको मैंने सुना है ना, तो इन्होंने कहा मैं कुवैत में रहता हूँ। जी जी, हाँ, मेरे ख्याल में ना वो पीछे रहते हैं वहाँ, नेट उनका पता नहीं क्यों नहीं चलना चाहिए नेट उनका वैसे। तो अच्छा नहीं, मेरे बैक साइड पे मोहम्मद अपने जुबैर अहमदी साहब वाली साइड असल पे में, रह रहे हैं। जुबैर साहब नेट कहीं किसी इलाके के अंदर ऐसा मसला भी है कि कुवैत में बहुत यूज होता है, तो वहां पे नेट का मसला बनता है। ये कई दफा हम जी जब जी। लाइव कॉल्स भी ले रहे थे ना, उसमें भी मसला आ रहा होता है हमें। अच्छा अक्सर अभी लोग मैं अभी दो जी तीन जी दफा हाजी साहब ऑफ हुआ ना, वो इसलिए कि मेरा नेट टेलीफोन में डायरेक्ट चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा था वाईफाई से वो कनेक्ट हुआ था, शायद कोई वाईफाई का लिंक इसको मिल रहा था, तो मैंने वाईफाई उसको ऑफ किया, तो फिर हमें सही हुआ। सही। अब तो आपका बिल्कुल क्लियर आ रहा है, अब तो आपकी मतलब वो हाँ फिर असल ठीक में है, वो असल मैं में। यहाँ पे जनाब जुबैर जुबैर शर्फी भाई, हम हाँ। चाहेंगे कि कमर निजामी साहब आज आखिर में कुछ दो कलाम सुना दें, जी जी बिल्कुल, मैंने कहा और है दो पहले, मैंने घंटे पूरे हो गए, दो शेर पढ़े लाजमी जी, और आपका अनायत टाइम भी हो खत्म हो कमर रहा है, भाई। तो आखिर कमर हाँ, निजामी टाइम साहब भी पूरा हो आप दो गया है, शेर उसके पढ़े। बाद सहरी का भी पाकिस्तान में असल में हादी भाई की सहरी का टाइम हो गया है, जी 2 जी बजे जी वहां जी सहरी पाकिस्तान। जी जी जी, जी कमर भाई बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, मैं अता हो। दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम आई है, तो मैं दोबारा कनेक्ट करता ठीक हूँ, है, फिर आ आपको जाए, सुनाता दोबारा आ जी जाए। आ तब जाए तक हम दोबारा। तारिक, आ जाए मैं आप। तब तक सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक चौधरी भाई आए हैं, उनका शुक्रिया। जावेद साकी जावेद हमारे साकी साथ साहब आए बने हैं, रहे हैं। अवैस 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 मंजूर साहब के अब्बास वालिद मंसूर साहब साहब। की आज तदफीन हुई है, जी उनके लिए दुआ कर दें। जुबैर भाई, अल्लाह अल्लाह ताला, ताला सर उनके हमने वालिद इतना साहब को कलाम पढ़ा, जन्नत अल्लाह ताला आमीन उस कलाम आमीन के आमीन सबके आमीन उनके आउज़ु बिल्लाह। लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए जी। आमीन 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 जी। आमीन जी, आमीन अब्बास आमीन मल्ती साहब आमीन, ने हमें ज्वाइन माशाल्लाह। अल्लाह किया, ताला उनको जवारे नसीम रहमत में खान जगह अता साहब ने फरमाए ज्वाइन जी। किया, अबू आमीन अब्दुल्ला आमीन ने हमें सबकी। ज्वाइन किया, और जाहिद जट साहब ने, और शाहिद महमूद साहब ने। अच्छा नहीं भाई, आप नहीं थे तो जो उस्मान भाई थे अभी, जिन्होंने उस्मान साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने दोबारा नाम सुनाई है, और मैंने उनको समझा दिया माशाल्लाह, कि आप डेली आया करें, उसमें कोई मसला नहीं है। आया आ करें गया जी, सुना। बिल्कुल आया करें। ये जी कमर ये निजामी साहब ने ये दोबारा भी ज्वाइन कर ये लिया है। उस्मान और साहब पाकिस्तान से हैं, कुवैत से हैं? कुवैत से हैं जी, आदि कुवैत आदि अच्छा उस्मान अच्छा साहब अच्छा असावी में है, असावी में आपके पास ही है। अच्छा, फिर जानते होंगे एक दूसरे को हम जरूर। चलें जी नहीं नहीं, कमर साहब जानते बिस्मिल्लाह, अब होंगे आ भाई। गए। जी कमर साहब सुनाएं जी, बिस्मिल्लाह। अभी ये दुआया कलाम ही है, ताकि जी जी इसके जी बाद जी आप माशाल्लाह। आदि भाई ब्रॉड बंद करेंगे फिर आप। जी जी, इसके बाद हम हाँ जी ब्रॉड क्लोज बिल्कुल, कर ब्रॉड देंगे। बंद करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन, खुद यदी खुद यदी साइलना अशकालना, खुद माशाल्लाह यदी साइलना अशकालना, या माशाल्लाह रसूल अल्लाह उन्जुर हालना,
یا حبیب اللہ اسما کا لنا، سخت مشکل میں کھڑا ہوں آج کل، سخت مشکل میں کھڑا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، فریاد ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کا لنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کا لنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی سائل لنا اشکا لنا، خذ یدی سائل لنا اشکا لنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ، رسول سبحان اللہ، اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کا لنا۔ یہ سبحان اللہ، دعائیت ہے جناب، ماشاءاللہ، آخر میں نے کہا یہ کلام پڑھ دیتے ہیں جی 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 پڑھ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ قمر بھائی جی جزائے خیر دے اللہ جی تعالیٰ آپ کو، زبیر آمین، شرفی بھائی کو، جن بھائیوں نے آ کے شکریہ، نعتیں پڑھی ان کو، اور آنے والے بھائیوں کو، مدثر ریاض بھائی آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے سب بھائیوں کو، اور لو یو آمین، آل جناب، بہت سی محبتیں، یہ اور اس محبتوں کے ساتھ اختتام کریں گے، اور اختتام سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹائم سے اور 12 بجے پاکستان ٹائم سے یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ذکر ہوگا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم عاجز مسکین ان کے در کے غلام جناب علی یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، اور آپ ضرور آئیں، تشریف لائیں، کیونکہ جو اچھا، صورتحال چل رہی ہے لاک ڈاؤن کی، یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب علی اس طرح اپنی اپنی جگہ سے اکیلے بیٹھ کے اس کا حصہ بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوشل آپ ڈسٹینس، ضرور آئیں۔ سوشل ڈسٹینس بھی ہو نائب گیا نا صاحب اس کی ذرا تک۔ نائب صاحب ایک بات میں صرف کرنا چاہتا ہوں، ایک بات صرف، وہ اس لیے کہ جزاک اللہ جاوید میں ساقی صاحب۔ اچھا سادی بھائی ایک بات کروں گا، وہ یہ کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے 24 آور، یہاں کرفیو نافذ ہے کویت میں، اور میں نے کل دیکھا کہ 4:30 سے 6:30 بجے تک، کل میں یہاں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا کیونکہ روڈ کے اوپر ہی میرا گھر ہے، تو نیچے سے آواز آئی، میں نے دیکھا 4:20 ہوئے تھے، لوگ یہاں گھوم رہے تھے، تو پولیس آئی، وہ 3 آدمیوں کو اس پہ ڈالا لے گئی۔ تو میری آپ کے پلیٹ فارم جو ہے اس سے میں بات بچانا چاہتا ہوں کہ آپ قانون کا خیال رکھیں اور اس کو فالو کریں، اور 4:30 بجے سے پہلے باہر نہ آئیں۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں لوگ گھوم رہے ہیں، جب لوگ گھوم رہے ہیں پولیس آئے گی، پکڑ بھی سکتی ہے، تو اس لیے اپنی حفاظت بالکل کریں۔ صحیح، اور آپ کے ساتھ میں ایک ایڈ کروں گا زبیر بھائی کہ یہ 2 گھنٹے جو ملے ہیں، یہ 2 گھنٹے واک کے لیے ملے ہیں، یہ گیدرنگ نہ کریں، گاڑیوں کے پاس کھڑے مت ہوں، وہ بھی پکڑ رہے ہیں، میں نے آج خطان میں دیکھا لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جو جمگٹا بنا کے نا بلڈنگ کے لوگ کھڑے ہیں، آپ واک کریں، 2 گھنٹے واک کے لیے ملے ہوئے۔ جی میں نے کل میرے سامنے پکڑے جی انہوں نے، اس لیے میں کہنا چاہتا تھا کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس بات کا۔ تھینک یو شاہ جی، اور اپنا ڈاکٹر جانزیب صاحب بھی نیچے کہہ رہے ہیں تھینکس ادا کریں، کیپ اٹ اپ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سو نائس آف یو۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کل آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ہوگی نور مست خان افریدی بھائی یہاں موجود ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے دنوں، زبیر بھائی ہاں جی، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعلیٰ مقام دے جنت میں۔ اس کے ساتھ ہی ہادی بھائی آپ اختتامی کلمات کہہ دیں، اور بہت شکریہ میری طرف سے سب بھائیوں۔ میں نے یہ کہنا تھا اپنا نعیم بھائی اور ہادی بھائی، جی نعیم بھائی اور ہادی بھائی، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کل جن نعت خوانوں کو بلوانا ہے، صرف آپ ایک چھوٹی سی پوسٹ بنا دیں جس میں اپنا اور اس کا ٹائم اور اس کے متعلق یہ محفل کا نام رکھ دیں، اور 10 بجے کا ٹائم رکھ دیں کویت کے حساب سے، اور یہ پوسٹ پھر میں دوستوں کو سینڈ کر دوں، تاکہ وہ اس ٹائم پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بزی ہیں یا گھر میں ہی بزی ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا چل جائے گا ہم نے اس ٹائم پڑھنا ہے، تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا ان کو۔
नहीं सुनने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे ना, ये भी सही है कमर साहब, सुनने वाले भी ज्यादा हो जाएंगे इससे। जी जी ठीक है, मैं एडिट कर सकता है, बना सकता है तो अच्छी बात। जी मैं पोस्ट अभी बना के आपको देता हूँ। मैं आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ फेसबुक पे, तो आप काइंडली एक्सेप्ट कर ले, तो मैं उसके बाद आपको बना के देता हूँ, अभी बना के देता हूँ। जी माशाल्लाह। ठीक है जी। आज इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि मैंने एक छोटी सी एक बात सोची थी, और माशाल्लाह मुझे नहीं अंदाजा था कि ये एक जो मैं एक दिल में छोटी सी ख्वाहिश है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये शायद मेरी वो एक ख्वाहिश की कबूलियत थी, अल्लाह ताला ने सुन ली। और मैं वो नहीं भाई ने आपको कहा कि आप एक ख्वाहिश हादी साहब आशिक़ रसूल ऐसे ही होते हैं, आशिक़ रसूल जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह। जी अभी देखिए मेरे पास अभी मेरे पास वालेकुम सलाम नूर मोहम्मद तफरीदी भाई, सामुना, खुदा हाफिज जानजेब भाई, थैंक यू वेरी मच। ऑफिस का एक बहुत ज्यादा काम था मेरे पास, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि महफिल नात का समा बना हुआ है, मैं सारे काम छोड़ के आपको इस महफिल में शामिल हूँ। इंशाअल्लाह जी। मैं ना निजामी साहब, इसका जो लिंक है ना आपको 4 बजे 5-6 बजे इस तरह मिल जाएगा, पहले क्रिएट करते हैं इसका लिंक। तो आपको वो लिंक भेज देंगे, जिन्होंने नात पढ़नी है वो उस लिंक पे आएंगे। बाकी भाइयों को पेज का एड्रेस आप लोग बता दीजिएगा, आसान है। कोई पाकिस्तान यूथ सोसाइटी का पेज है, यहाँ पे नीचे वो इंशाल्लाह ताला तमाम नाते सुनेंगे। ठीक है जी। जी मैंने इस वक्त टीवी पे भी चलाया हुआ है, शायद मैंने आपको दिखाया है कि टीवी पे भी चला रहा है इस वक्त। जी तो मजा आया कमर भाई आपको आज हमारे साथ, थोड़ा सा आपने जो वक्त बिताया जनाब हमें। जी जरूर। आदि भाई कह रहे थे कि मैंने तो सोचा था कोई छोटा सा प्रोग्राम, ये तो माशाल्लाह यहाँ पे तो मैं कहा अभी तो अब नहीं यहाँ पे आदि भाई को भी पता नहीं है ना, अभी आदि भाई को भी नहीं पता, अभी आदि भाई को ये पता नहीं है कि यहाँ पे कितने बड़े हीरे रहते हैं हर तरह के। ये नहीं पता आपने किधर हाथ मार दिया है। मैं सिर्फ बता रहे थे 30-35 नात खाए, 40 से ऊपर नात खाए इधर आप। 40 माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह जी मुलाकात होती है सबसे, ठीक टाइम और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे। तो तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हादी की तरफ से अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज। लव यू ऑल, लव यू। कमर भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, जुबैर भाई, सब भाइयों को खुदा हाफिज, लव यू। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, सेफ्टी का ख्याल रखें, और जो इंस्ट्रक्शन कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उस पर एज अ पाकिस्तानी मनो अमन उस पर अमल करें, बहुत जरूरी है। अपना नाम उन लोगों में ना लाएं जो खिलाफ वर्जी में हो, ये मेरा मैसेज है एज अ पाकिस्तानी, और आप मुझसे बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लव यू ऑल जी। ठीक है कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नहीं भाई। वालेकुम सलाम।